Guys, hello everybody. So after a long time I'm here to share my another beautiful manifestation that came true of becoming a author. Till now I was a co-author, and now finally I have got the opportunity via Likhega India mission run by Shweta Samota to create a world record of publishing 1,000 authors in a day, and I got the opportunity to be the one, and I'm truly grateful to her for guiding us throughout this journey, for hand holding us like literally like babies. She has guided step by step how we can write a book, and many a times the thought came कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, आई वॉन्ट टू गिव अप, एंड देन स्टिल आई केप्ट पुशिंग, क्योंकि एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनती हूँ. समथिंग इनसाइड मी न्यू कि इस चीज़ को फिनिशिंग लाइन तक तो लेकर ही जाना है. इट वॉज श्वेताज गाइडेंस. हाई कैरोलिन, हाई सुधा, हाई सर्वेश. सो इस जर्नी इस ऑथर बनने की जर्नी को एंड फिनिश लाइन तक लेकर ही जाना है. एंड आई वॉज inspired because it was for India, something that an opportunity to serve India, to contribute for the growth of India. And थोड़ा सा वो patriotism है कहीं ना कहीं cells में, तो I thought that this is an opportunity I cannot let go just because of my resistances. And finally today my book made it to Amazon Kindle account. It will be soon live. I will share the links. Let me share a little about my book. What does it contain? So my book, Voices That Inspire, is based on the podcast stories of my guests. Whatever the learnings that I have got from this podcast, I have penned them down inside the book. And let me share you behind the scenes of it. क्योंकि ये पॉडकास्ट 2-3 साल पहले हुए हैं. Some of them मतलब अलग अलग टाइमलाइन पे हुए हैं. So I was like, इवेंचुअली यू फॉरगेट द लर्निंग्स, बट जब आप वापस से इन्हीं पॉडकास्ट को सुनते हो, टू पेन देम डाउन नाउ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, I got to learn a lot of things, that these real life stories, real life journeys of women going through challenges, through self doubts, through internal struggle, to physical challenges. मतलब बहुत सारी, like 10 stories that I have picked up. They contain some or the other powerful message where they have overcome some or the other challenge. And in bringing out these stories, like finally penning them down, I got to learn a lot. And that's what I want to bring out to you in the form of this book. Even if one person gets inspired from this book, मेरा जो ये पूरा लिखने के पीछे जो मेरी मेहनत गई है वो सफल हो जाएगी. And I'm really grateful to all the guests, all the 10 guests who have given me the permission, the consent to bring out their stories. And the one beautiful part about this podcast is I got to interview my father. On Father's Day special, I recorded one podcast with him. And now this is the only form in which I have him, where I can hear him, where I can go back to his learnings, because उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की है, उन्होंने अपने लाइफ के मंत्रास शेयर किए हैं. And I felt truly emotional while penning down his story, his special chapter, क्योंकि he was my inspiration, he was my guide, he was my mentor, he was my best friend from childhood. He has been my support system. And suddenly I lost him this May. And that's when this podcast actually helped me, how. एक तो कि मुझे ये फॉर्मेट में मेरे पापा मिले हैं, that I can hear him. Second is when I was feeling low, when I was feeling empty, when I was grieving at that time, I launched a 7 days podcast series with my guests. Hello Rohini ji, hello Anshika, hello Karthik. So I launched a 7 days podcast series. And उसमें मैंने 7 अलग अलग गेस्ट से कनेक्ट किया. 7 अलग अलग गेस्ट की स्टोरी लाने के लिए हमारे बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हुए, डिस्कशंस हुए. एंड in those 7 days I was completely occupied, busy. And by the end of the 7 day, some
part of the grief got healed and I felt a different energy. So I believe that this podcast are blessing. Pehle to as a orator, I absolutely love connecting with people and bringing out their stories, and secondly to give me the part of my father's memory, and thirdly to help me heal. So I believe, and now fourth is that advantage कि उसने मुझे बुक राइटिंग में भी हेल्प कर दिया, एंड नाउ फिफ्थ additional is it has become the part of Likhega India mission, which is a world record of creating 1,000 authors in a day by Shweta Samota. So I am like blessed to this podcast जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, and to all my guests जो आके अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, जो आके वनरेबल होते हैं, जो आके अपने स्ट्रगल चैलेंजेस सब कुछ पब्लिकली बताते हैं कैसे उन्होंने ओवरकम किया है, विच इज़ नॉट एन ईजी जॉब. कोई भी आकर अपनी स्टोरी ऐसे ही नहीं बता सकता. देयर इज़ वन स्टोरी ऑफ अ वुमेन हु वाज नॉट एबल टू कंसीव फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. तो वो कैसे उन्होंने सोसाइटी के लेबल्स जो मानते हैं कि यू आर इनकम्प्लीट विदाउट हैविंग, हाई डॉली, विदाउट हैविंग चाइल्ड एंड ऑल, तो वो कैसे ओवरकम किया. 10 years के बाद शी गॉट प्रेगनेंट. व्हाट वाज स्टॉपिंग हर फ्रॉम कंसीविंग. वो बोली कि शी वॉज होल्डिंग ऑन टू सम फियर दैट वॉज पुट इन साइड हर इन द चाइल्डहुड इट सेल्फ. देन आई हैव अ स्टोरी ऑफ अ professor going through menopause. She was in her 60s and she lost her memory, and how she rebuilt herself to gain back her memory, and not only gain back the memory but win the Brainathon memory championship. So how if we work on ourselves, like ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसी पूरी 10 पावर पैक्ड स्टोरीज है गाइज, एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट. इफ यू वांट लाइक कुछ शिफ्ट लाना है ना, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ चैलेंजेस, रियल लाइफ जर्नीज से सीखना है, क्योंकि दीज आर वुमेन लाइक यू एंड मी. ये सारी सेम रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रगल, जगल्स, फाइनेंसेस से जा रही है जैसे कि हम लोग हैं. दे आर नॉट द सेलिब्रिटीज, दे आर नॉट द स्पेशल वंस, they are just like you and me. So you will be able to find yourself in some or the other story. आप relate कर पाओगे क्योंकि every story is special. I'll just give a छोटा छोटा glimpse of all the stories. First is of Sangeeta Chauhan. She was a homemaker from 22 years and how she transitioned from a homemaker to a life coach after 22 long years, जहाँ पे technical कुछ भी नहीं आता था, English बोलना नहीं आता था. From there to now assisting अच्छे coaches in their coaching journey and guiding people, having her own community, how she built herself. Then the story of Commander Prabha Lal, जहाँ पे how she like Commander वो अभी क्या बोलते हैं, रिटायर हो गए हैं, लेकिन जब वो उन्होंने स्टार्ट किया था तभी लड़कियों का कमांडर बनना वॉज नॉट अ नॉर्मल थिंग. अभी भी इतना नॉर्मल तो नहीं है, बट स्टिल दैट टाइम. तो उन्होंने कैसे अपने उस चीज़ पे फर्म रही, कैसे अपने पापा को कन्विंस किया, कैसे वो कमांडर की ट्रेनिंग में घुसी, कैसे उन्होंने अपने लाइफ में ऑल सारे स्ट्रगल्स और चैलेंजेस, सिर्फ एक सेंटेंस जो उन्होंने बचपन में सुना था कि आई जस्ट शेयर अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट नहीं दूंगी तो नहीं समझेगा. सम पर्सन केम टू देयर होम एंड उनको वो बोल रहे थे कि इसको शादी करके मैडम तो बनना ही है, आइदर शी बिकम मैडम बाय हरसेल्फ और बाय द वर्च्यू ऑफ हर हस्बैंड, कि वो हस्बैंड किसी अच्छे पोस्ट पे होगा तो सब इसको मैडम मैडम बोलेंगे. एंड शी टुक इट ऑन हर हार्ट एंड शी सेड दैट मैडम तो बेटा मैं ही बनूंगी, अब मैं खुद के बलबूते मैडम बन के दिखाऊंगी. एंड दैट्स व्हेन शी गॉट अट्रैक्टेड टू नेवी एंड शी बिकम द नेवी कमांडर. So she has shared what all challenges she faced in this journey and how she stick to her dream no matter how the no came from her family. nahi, but still she made it. So that was the second story. Third story is of Dr. Nawaz Marker. She is in her 70s and still she is so much G. Like उस पॉडकास्ट में उन्होंने मेंशन किया है कि आई एम परस्यूइंग माई PhD, and now I said कि she is already a PhD and she is holding her doctorate degree. And how इसमें सबसे important थी वो स्टोरी जहाँ पे she has helped her husband who
was declared by the doctor कि 24 hours only he has, and that is a 30 years back का story. Now her husband is in their 80s. तो कैसे वो उस टाइम पर उनके वो जो हार्ट अटैक आया था वहाँ से लेकर अब तक उन्होंने उनको 2 महीने के अंदर ठीक किया था, ओनली विद इंट्यूटिव पावर्स. उन्होंने वो सारी चीज़ें यूज़ करके उनको कैसे हील किया, एंड हाउ शी हैज़ द माइंडसेट, हाउ शी हैज़ द माइंडसेट टू ओवरकम द चैलेंजेस. कैसे उन्होंने अपने आप को होल्ड ऑन करके रखा, अपने इमोशंस को होल्ड ऑन करके रखा टू हेल्प हर हस्बैंड हील. वो वाला बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी था. और फिर उनके डॉक्टर बनने की स्टोरी तो अभी आएगी, पर उन्होंने बताया था कि मैं परस्यू कर रही हूँ तब. इट वॉज 2 years बैक. Then comes the story of Sanju Rathi. She is a Marwadi, from Marwadi family, and she was assisting police with her graphology. पर वो ना चुप चुप के असिस्ट करती थी. उनके घर पे उनके हस्बैंड और उनके फादर इन लॉ को छोड़ के किसी को पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ करती है. फॉर 10 long years शी डिड दैट. एंड जब उनकी मदर इन लॉ को पता चला तो उन्होंने उनको बाहर जाने से मना कर दिया. शी बर्न्ड हर सर्टिफिकेट्स एंड एवरीथिंग. एंड आफ्टर like 2-3 years her husband passed because of cancer. And the same mother-in-law who stopped her from stepping out of the home supported her to go back and do whatever that she wanted to do. तो ये वाली story again is a very very powerful story. You should go and read this story, guys. These are like soul shaking stories. ये जो 10 stories आई है ना, मेरे लिए तो पूरी 69 की 69 stories होल्ड करती है बहुत कुछ. लेकिन ये जो 10 stories आई है वो बहुत ही इंट्यूटिवली आई है. आई हैव पिक्ड अप डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ डिफरेंट गेस्ट एंड देन पुट देम डाउन. पर आई बिलीव एवरी स्टोरी इज़ वेरी पावरफुल. देन कम्स डॉक्टर शमा कुल्हाली की स्टोरी, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि मेनोपॉज के टाइम पे उनकी मेमोरी लॉस होने लगी थी. शी स्टार्टेड फॉरगेटिंग थिंग्स. एंड शी वॉज ऑलरेडी अ रिसर्चर, ऑलरेडी अ डीन, अ प्रिंसिपल. शी वॉज मतलब बहुत ही पढ़ाई में वो बहुत अच्छे थे. तो उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है. एंड शी गॉट टू नो कि मेनोपॉज के टाइम पे बहुत सारे ब्रेन सेल्स मरने लग जाते हैं, एंड यू कैन एक्टिवेट द वंस दैट आर नॉट येट टच्ड. तो वो कैसे उन्होंने न्यूरो साइंस सीख के अपने ऊपर वर्क करके कैसे उन्होंने अपनी मेमोरी ना कि वापस पाई, बट शी वन द ब्रेनाथॉन मेमोरी कॉम्पिटिशन एज वेल. तो ये वाला स्टोरी. देन डॉक्टर अर्चना सावंत का स्टोरी, जिसमें लाइक इन द बिगिनिंग ओनली आई नरेटेड कि वो बेबी वाली कि माँ नहीं बनते हैं तो कैसे सोसाइटी लेबल करती है. देन अनदर स्टोरी ऑफ नीतू राठौड़, जिसमें शी मेट अ फैटल एक्सीडेंट, जहाँ पे डॉक्टर्स हैव सेड दैट कि अगर आप बच भी गए ना तो यू विल नेवर बी एबल टू वॉक. एंड शी सेड कि अगर आपने मुझे बचा लिया ना डॉक्टर, चल के तो मैं दिखाऊंगी. दैट मच कॉन्फिडेंस शी हैड. एंड शी वॉज पैरालाइज्ड बिलो द नेक आफ्टर दैट फॉर 9 long months. एंड हाउ शी वर्कड ऑन गेटिंग बैक ऑन हर फीट. वो बोलती थी इतना पेन होता था, लाइक 500 bones breaking, but still she kept working every single day on herself. And how she came out of that, and today she is not only walking talking but वो थोड़ा बहुत डांस भी कर लेती है, because she was a Zumba instructor for 17 long years. तो it was her mindset, it was her willpower जिसने उनको इतना strength दिया to fight that paralysis. And then comes the story of Dr. Rashim, who is a dentist. She is going from 22 long years with rheumatoid arthritis, जहाँ पे हर बोन में पेन होता है, इमेंस पेन होता है. एंड विथ दैट पेन शी इज एन एरहाटिक योगा टीचर. दैट वॉज सो अनबिलीवेबल फॉर मी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है जब उनके खुद की बॉडी में इतना पेन हो रहा है. यहाँ हम फिजिकली फिट होते तो भी हमें योगा करने में ऐसा लगता है कि अरे अभी दुखेगा, ये है वो है. एंड शी मेंशन्ड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन, डिसिप्लिन. जब मैंने पूछा आप इतना ये सब करने के लिए आपको बहुत डिसिप्लिन रहना होगा ना, शी सेड अ वेरी पावरफुल लाइन, नो चॉइस
अनीता नो चॉइस, अगर आप नहीं करोगे तो आपको आप बेड पे स्टक हो जाओगे, और वो उनको होना नहीं था। एंड इन दिस कंडीशन जहाँ पे उनके खुद के बोन्स इतना पेन करते हैं, शी सेज कि वो विश करती है कि वो सोए ना, क्योंकि सो के उठने के बाद पेन बढ़ जाता है। तो विद दैट पेन शी इज हेल्पिंग 2 different NGOs and as doing the role of a dentist. I was like hats off, kudos, like एक स्टोरी ना एक यूनिक पीस है. आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू आइदर द पॉडकास्ट इफ यू आर अ विजुअल एंड ऑडिटरी पर्सन लाइक मी, and if you are someone who loves to read book, then this book is coming. And there is another story of Chinha Raheja. She is a personal impact coach, जो कि उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है कि कैसे वो हर जगह पे ब्लेम कंप्लेन करने लग गई थी अपनी लाइफ में, और हर जगह उसी के पैटर्न्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे. उनके लव मैरिज जो 4 साल उन्होंने अपने घर वालों को कन्विंस करने के लिए लगाए थे, वही मैरिज से वो 5 साल में भागना चाहती थी. शी वॉन्टेड टू रन अवे फ्रॉम द मैरिज शी फॉट फॉर. वहां से लेकर उनके एक लीडिंग ट्रेनर बनने तक की कहानी कैसे उन्होंने पूरी तय की, उन्होंने वो बताया. हाउ शी वर्कड एंड व्हेन शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर रिलेशनशिप तो अपने आप इम्प्रूव हो गए. And now she is having a beautiful family with her husband and her daughter. Her daughter is also a teenager like my daughter. And last and the final story, that's a special story, that's of my papa. Actually, it's a gift from universe to me कि मुझे वो एक फिजिकल फॉर्म में मिले हैं यहाँ पे पॉडकास्ट के थ्रू. एंड नाउ आई हैव ऑलरेडी पुट इट स्टोरी इनकी स्टोरी बुक में भी, तो अब वो बुक में भी चले गए हैं. एंड हिज लर्निंग्स वर सो पावरफुल. ही ऑलवेज ट्रस्टेड गॉड. एंड उन्होंने एक लाइन बहुत पावरफुल बोली थी कि आपको कुछ भी चाहिए तो निकल जाओ, यू विल गेट हेल्प ऑन द वे. एंड आई वॉज लाइक, ये तो काइंड ऑफ मैनिफेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज बता रहे हैं कि आपको पूरी कायनात सपोर्ट करेगी. इनको लगता है पहले से ही पता था. सो लाइफ कोचिंग में हम बहुत कुछ सीखते हैं, बट आई बिलीव कि मेरे अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आई हैव लाइक रिसीव्ड एज अ इनहेरिटेंस फ्रॉम माई डैड. ये जो मैं ऑरेटर हूँ, स्पीकर हूँ, वो भी उन्हीं की तरफ से मुझे दिया गया गिफ्ट है. सो आई वॉज ट्रूली ब्लेस्ड टू ब्रिंग आउट ऑल दिस 11 स्टोरीज. दे आर अप ऑन किंडल. If you want to take your copy, pre-book your copy, it will be live within 72 hours. कुछ लोगों की हो गई है, कुछ लोगों की प्रोसेसिंग में है. So DM me. I would love you to read these stories. They might inspire you. They might help you shift your life. And thank you so much, Mansi, Rupa ji, Vasu ji for joining in. Thank you Vivek, Vasanta for joining in. Thank you Devya, Hemant ji for all your love and support. So what I was saying कि अगर आप एक वुमेन हो तो डेफिनेटली दिस बुक इज़ फॉर यू. अगर आप स्टक फील कर रहे हो, सेल्फ डाउट कर रहे हो, रेजिस्टेंस आ रहा है, डेफिनेटली दिस बुक इज़ फॉर यू. एंड अगर आप एक मैन हो एंड यू वांट टू गिफ्ट इट टू सम ऑफ योर फैमिली women, like a daughter or a wife or friend, colleague, तो this is the best gift you can give. And मैं चाहती हूँ इस बुक से अगर एक सोल की भी लाइफ ट्रांजिशन हो जाए तो my job of writing this book will be done. So that's what I wanted to share with you all. मैं वो एनर्जी शायद कोई पोस्ट से नहीं बता सकती थी. I wanted to come and share it personally with you guys. And I'm so happy. एक तो कि आई एम पार्ट ऑफ द लिखेगा इंडिया मिशन, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया. सेकेंडली आई बिकेम एन ऑथर, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन कम ट्रू. थर्डली मेरे पापा का स्टोरी. फोर्थली द पॉडकास्ट हेल्प मी टू हील ड्यूरिंग माई लो टाइम्स. एंड देन और क्या और तुम लोग ढूंढ के बताओ, कमेंट करो नीचे. I would love to read your views. And thank you so much. Bye bye. That's what I wanted to share, the update
ऑफ माई लास्ट 1 मंथ में क्या क्या चल रहा था, लेट नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग्स। आई वॉज जस्ट डेडिकेटेड कि कैसे भी करके मुझे ये बुक फिनिश करनी है, एंड विद द डेफिनेटली अ पावरफुल हैंड होल्डिंग ऑफ अ कोच। आई बिलीव अगर आपको राइट कोच मिल जाता है ना, राइट गाइडेंस मिल जाती है, तो आपका टाइम शॉर्टन हो जाता है। अगर यह मैं खुद से अकेले लिखने जाती, आई माइट हैव टेकन 1 ईयर 2 ईयर और नेवर एंडिंग, कभी बुक रिलीज ही नहीं होती। बट आई गॉट द राइट ऑथर, तो वो 1 सवा महीने में मेरी बुक रिलीज हो गई। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि गॉड सेंट द राइट चैनल्स टू हेल्प मी मैनिफेस्ट माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन ऑथर। थैंक यू so much for coming and listening to me. Bye guys.